آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نیوز 18 اردو اور میں ہوں ریشما آفتاب. اور رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برکتوں، مغفرت اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس بار پھر سے رمضان ہم پر سایہ فگن ہے اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس کی طاق راتوں کی عبادت کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر، بلکہ کہا جائے تو 100 گنا بڑھا کر اپنے بندوں کو دیا ہے. اسی برکت، رحمت اور اس کی فضیلت پر ہم بات کریں گے جنابہ سیدہ رضوی صاحبہ سے. رمضان کے بارے میں کچھ پہلے آپ بتائیں اور پھر ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں. دیکھیے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ہر مہینوں میں سب سے افضل ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کما کتب علیکم الصیام، جی، اور لعلکم تشکرون، لعلکم تتقون، کہ جس سے تم شکر گزار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو. تو یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور امت مسلمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں انہوں نے ہر فرقے میں یہ قرآن سے اور حدیثوں سے یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ اپنے خیالات اپنی حدیث میں کہا کہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ اپنی رحمتوں کو بڑھا دیتا ہے. جو ایک چیز کا ایک ثواب ہوتا ہے وہ رمضان میں 10 کے برابر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کچھ چیزوں میں جو عبادتیں خاص ہیں، قرآن وغیرہ، تو اس میں 70 کا ثواب ہوتا ہے. لیکن ہاں، اس کے ساتھ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان شروع ہوا ہے تو رمضان خالی بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. ہم یہ سوچ کے روزے رکھیں کہ رمضان جو ہے یہ ہم اپنی روحانیت کو تازہ کریں، اپنی روح کو، اپنی اسپریچول اپنے قوتوں کو ہم اور بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور اس لیے یہ ہے کہ روزہ ایک طرح سے نفس پہ قابو ہے. جی، ایک کھانا ہے ہمارے سامنے. میرا یہ سوال ہی تھا ابھی کہ کس طرح سے اس پاک مہینے کو بسر کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے جی، کہ میں نے کہا نہیں کہ روزے رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس صبح سے شام تک کچھ کھائیں نہیں اور شام کو اچھے اچھے کھائیں. جب ہم روزے کی نیت کریں تو ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہیں، اور جب بھوکے ہوں تو ہم کسی غریب کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہم تو ہمارے پاس غذا ہے لیکن ہم تھوڑی دیر نہیں کھا رہے ہیں تو ہمیں یہ حالت ہے، لیکن جس کو میسر نہیں ہوتی. تو اس رمضان کے بعد اگر ہم میں تبدیلی آ گئی تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے قبول ہو گئے. سچ یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے حوالے سے کیا کیا قرآن پاک میں ہدایت فرمائی ہے؟ آپ قرآن پاک کی روشنی میں بھی کچھ بتائیں ہمارے ناظرین. اس مہینے کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں سب سے پہلے تو سورہ بقرہ میں ہی اس نے کہہ دیا ہے. جی، بھائی میں نے کہا نا کہ لعلکم تتقون کما کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تمہیں رہنے اور شہر الرمضان لعلکم تتقون، کہ یہ رمضان جو ہے، یہ مہینہ جو ہے اس لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. سورہ بقرہ کی اس نے پہلی آیت میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین. دیکھو قرآن ہم پڑھتے نا، قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کو آپ ایک آیت پڑھیں لیکن اس ایک آیت میں بھی آپ کے ذہنوں میں یہ رہے کہ وہ اس خالق کا کلام ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے. میں نے جو آیت پڑھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین. یہ قرآن پڑھنے سے تمہارا قرآن نہیں ہے، قرآن کس کے لیے؟ للمتقین الذین، متقیوں کے لیے ہے قرآن. پھر اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. یؤتون الزکاۃ، یہ مہینہ وہ ہے جس میں خدا بند عالم نے الحمد کے بعد پہلی سورت میں کہا یؤتون الزکاۃ، زکات دو. تو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد کہا ہے یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ھم ینفقون. ینفقون کیا ہوتا ہے؟ ینفقون کے معنی ہوتے ہیں اپنے مال کو خرچہ کرنا. کس پہ خرچہ کرنا؟ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. مما رزقناہم ینفقون، اپنے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو.
रोज़ा रखो, अल्लाह की याद रखें, अपने दिल को बुराइयों से पाक रखने का ये रोज़ा होता है, अपने दिल को बुग़्ज़ और हसद से बचाने का ये रोज़ा होता है। ये रोज़े की असली जो नौयत है वो हम उसको अगर महसूस कर लें तो हमारा रमज़ान में इबादतों की फजीलत कहा जाता है कि ज़्यादा है और सवाब भी ज़्यादा है, तो ताक़ रातों का क्या मतलब होता है और ताक़ रातें क्यों अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखी हैं? देखिए, ताक़ रातें, जुज़ रातें, लेकिन जो अलिफ उसमें सूरह इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र की जो बात की गई है उसमें अहादीस से, चूंकि अब कुरान आया सीने मोहम्मद पे, वंज़लनाकुम, है ना, मैंने नाजिल किया कुरान सीने मोहम्मद पे, तो वो हम तक आया। इसमें हदीस के ज़रिए या मुकम्मल रवायत ये है कि ये जो ताक़ रातें हैं इनमें ही कुरान नाजिल हुआ है। ये रातें जो शहर रमज़ान की हैं उसमें एक आयत में यहाँ पे फिर से दोबारा आई है वो आयत की कमा कुतबा अलैकुमुस्सलाम शहर रमज़ान, और वो रमज़ानों में लैलतुल क़द्र अजीम, लैलतुल क़द्र अजीम, कि वो क़द्र की रात जो है वो अजीम रात है। तो इसलिए जो हदीस में या इम्मा की हदीस है या जो हमारे इस कुरान के तर्जुमान हैं उन्होंने जो हदीस को पेश किया है उससे जो ये बात पता चलती है तो ये है कि ये ताक़ रातें थीं, और इस लिहाज से कि हम उन रातों को 23, 27, 21, 19, 23, 27 तक के ये कहा जाता है। कुछ में 23 को मानते हैं कि नाजिल हुआ और कुछ फ़िरक़े वाले 27 को मानते हैं, मगर ये रातें ताक़ रातें कही जाती हैं, जुफ्त रातें नहीं हैं। और जुफ्त और ताक़ की बात तो कुरान ने, परवरदिगार आलम ने दूसरे सूरत में भी इसका जिक्र किया है। बहरहाल कभी क्या बिल्कुल रोज़ा जिस तरह रखा जाता है और कहा जाता है कि फ़र्ज़ है, तो किस किस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है? देखिए, किस पर फ़र्ज़ है? देखिए, पहली बात तो जवान होने के बाद जो उम्र है बालिग होने की, उसके बाद रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो आपको रखना। फ़र्ज़ के मतलब है कि आपको रखना है। लेकिन अल्लाह ने इस्लाम को, हम इस्लाम को बहुत मुश्किल बना देते हैं, है ना। हमें पर्दे के लिए कहा गया, हम थोड़ा सा अपने जिस्म का पर्दा रखें, अपनी निगाहों में पर्दा रखें, बहुत आसान दीन है। तो उसी तरह से आपने क्या सवाल ये किया मुझसे अभी जो कि किस पर फर्ज है और किस पर नहीं, उसको दोहराते हुए, क्योंकि भाई अवाम को बार बार सवाल याद रहे कि रोजा फर्ज कर दिया है उसने, लेकिन बीमार पे नहीं है। बीमार अगर रोजा रख ले तो साकित हो जाता है, उसने रोजा रखने के लिए कहा है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप ये सोचें कि उसे अपने बंदे कितने प्यारे हैं, वो बंदे को हलाक नहीं करना चाहता है। हमसे वाजिबात जो उसने रखी हैं वो हमारी हिफाजत के लिए रखी हैं। अगर औरत हामिला है तो वो भी रोजा न रखे, लेकिन हाँ इसका कज़ा अदा करे। तो फर्ज की बात यही है कि जो अगर कोई बीमार है, किसी को मना किया है तो वो न रखे। कोई बीमार है और अगर डॉक्टर ने उसे मना भी किया फिर भी वो रोजा रख रहा है तो उसका रोजा कैसा है? वो रोजा साकित है। देखिए, जब कोई शर्तें दे दी गई तो हमें उस शर्त को तो मानना है। इस्लाम की शर्तें हैं और कवानीन है, हमें उस कवानीन में, उस दायरे में रहना है। जिस तरह से हर मजहब के एक एक कवानीन होते हैं और हम अपने से नहीं बना सकते हैं उसको। तो जब अल्लाह की तरफ से वाजिब किया गया, वही अल्लाह हमसे ये कह रहा है कि नहीं, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें नहीं रखना है, तो हमें उससे बाज आ जाना है। असल मकसद क्या है? कहा जाता है रोजा अगर हम देखते हैं बाजारों में तो खाने की अशिया बहुत बेतरीके मिलती रहती हैं, हर तरह के फल और हर तरह के अनवा अक़साम के जो खाने हैं वो बाजारों में बढ़ना मिलना ज्यादा हो जाते हैं रमजान के मौके पर।
इबादत भी होती है, मस्जिदों में भी एहतमाम किया जाता है, लेकिन असल मकसद जो रोजे का है वो कहीं ना कहीं गुम होता हुआ नजर आता है कभी ना कभी कहीं पर देखिए। तो आप ये बताइए कि असल मकसद रोजे का आखिर में है क्या, कि जो हमारे अभी जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उन्हें इन चीजों का अदराक हो और वो ये चीजें जाने और समझें। बिल्कुल, आपने एकदम सही फरमाया कि ये चीज़ों का एक रोज़े को हमने अफ्तार के लिए एक मकसद बना लिया है कि जो बेहतरीन किस्म के रवाज हैं या ये खाने पीने के अनवा व अक़साम हैं, इनके बगैर हमारा रोज़ा नहीं हो सकता। नहीं, रोज़े का मकसद, असल मकसद तो पहली बात है रोज़ा हमारी सेहत के लिए भी बेहतर होता है। हमारी इंटरमिटेंट एक तरह से फास्टिंग होती है, इससे हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में इंसुलिन छूटती है सही तरीके से, हमारा लीवर सही तरीके से काम करता है। हमने शाम होते होते सारी चीज़ों को तर्क करके, जो फवायद वाली चीज़ें उनको तर्क करके नुकसानदेह चीज़ें, तो सेहत को भी नुकसान हुआ और हमारा मकसद सिर्फ फिर खाना रह जाएगा। हम अपने नफ्स को काबू करें, बेहतर है, ठीक है, खाएं भी, ये नहीं है कि इस बात को किसी अलग मौजू पे ले लिया जाए। खाना पीना आपको अल्लाह ने दिया, बेहतर जिंदगी गुजारें, बेहतर खाएं, लेकिन रोजे का, रमजान का मकसद कोई एक चीज जुज नहीं बना लेना। हमारा जुज होना ये चाहिए, हम इबादत में मशगूल रहें, हम उठते बैठते हाथ में तस्बीह अल्लाह की रहे। और आप एक बात गौर करें कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो आपको मौत जरूर याद आएगी। जब रमजान आए तो ये ख्याल रखें कि कहीं ये मेरा आखिरी रमजान ना हो। जहां ये ख्याल आया तो हमें अपने बच्चों को आप यही कह के कहें कि कहीं ये आखिरी रमजान, मौत बरहक है, मौत की बात करना, मौत का जिक्र करना इबादत है। युखरिजुल्लाह परवरदिगार आलम युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, हर चंद आयतों के बाद उसे मौत को याद दिलाया है। क्यों याद दिलाया है? क्योंकि यहाँ तो इम्तिहान देना है, हमें पलट के जाना है। वो मुझे प्रैक्टिसेस करा रहा है, मुझे सिखा रहा है जिंदगी जीना, कि अगर आप कहीं कामयाबी की दहलीज पे जा रहे हैं, आप भूखे हो गए, आप रोजा रखने की आदत, आप भूख को नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप अपने मकसद को नहीं पा सकते। उसने हमारे लिए ये वाजिबात की है, उसे जरूरत नहीं थी मदह की। क्या है? लहू माफिस समावाते व माफिल अर्ज़े, जमीन का पत्ता पत्ता उसकी तस्बीह करे। युसब्बिहु लिल्लाह, जमीन का पत्ता पत्ता उसकी तस्बीह कर रहा है, उसे नहीं जरूरत है। तो यही है कि हम अपने बच्चों में ये अदराक डालें कि हमें रोजे का मकसद क्या है। वो ये है कि याद अल्लाह हो, दिल को बुराइयों से पाक रखें और रमजान के बाद इसको जारी रखने की कोशिश करें, परहेज़गारी रहे। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि ये जो सदका और खैरात तो उमूमन नॉर्मली हम आम दिनों में भी करते हैं, जो भी लोग होते हैं, लेकिन जो सदका और खैरात रमज़ान में या फिर ईद से जस्ट पहले जो किया जाता है, उसकी क्या अहमियत है? रमज़ान में अल्लाह ने, जैसे कहते हैं बाजारों में जाओ तो जब सेल ज्यादा होती है तो वो डिस्काउंट मिलता है, एक लो तो इतना मिलेगा। परवरदिगार आलम अपने बंदों को जानता है ना, उसने जब भेजा तो उसको नफ्स दिया है, तो उसने साथ में उसको कंट्रोल करने के लिए उसने भी तरह तरह की स्कीमें भेजी। तो उसने रमजान में हमें कहा है ना, वो नहीं चाहता है कि हम जहन्नुम की तरफ जाएं, है ना। उसने हमारे लिए, हमें तो बड़ा अफसोस होता है जब इस पे गुफ्तगू होती है, जब किसी को देखते हैं नमाज से हट जाए, किसी को देखते हैं नमाज रोजा भी छोड़िए, कोई जुल्म किसी पे करे, तो इसे क्या कहते? इब्लीसियत। अल्लाह ताला कहता होगा कि हमने तो बंदे तुम्हारे लिए शैतान को निकाला और तुम शैतान को पकड़ के बैठ गए। तो वो चीज़ है कि हम जो अपने दिल से उसकी याद अगर रखते हैं तो हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपनी उम्मत को इस महीने की फजीलत बयान की और क्या क्या ताकीद फरमाई? हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रोज़े की, नमाज की, ज़कात की, जो जुमला आपने कहा ना कि स्कीम अल्लाह ने निकाली 70, उसने कहा एक काम करो
तो तुम्हें उसके 70 गुना सवाब मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये रोजा जो है, रसूल ने ये कहा कि देखो तुम्हें अगर ज़कात देना है तो रमजान में दो, ताकि 1 के बजाय 70 का सवाब मिले। तो रसूल यही मेरा कह रहा है, जो अल्लाह कह रहा है वही रसूल कह रहा है, वही मैं, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो रमजान में ये चीजें, रात की तन्हाई में लेटें और अपने वजूद में अल्लाह की याद को एक बार करें। बहुत लंबी इबादत का नाम नहीं है रोजा, बहुत लंबी नमाज का नाम नहीं है रोजा। इबादत है, आप इबादत लफ्ज बना है, बंदा अब्द से बना है, अब्द कहते हैं बंदे को। तो आप रमजान में तो कम से कम उसके मैं लेबनान बंदों के का कोला एरिया में हूँ और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। सेगमेंट को और इसी तरह के प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम सईदा बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो उन्होंने हमारे साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू की, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो यहाँ पर हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू। और फिर से एक बार खुदा हाफिज।